पिछले क्लास में देखो हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म लिखना सीखे थे फॉर ऑल 8 टाइप्स ऑफ पैराबोला। तो पैरामेट्रिक फॉर्म हम लोग लिखना इसलिए सीखे थे क्योंकि अक्सर पैरामेट्रिक फॉर्म का ही हर जगह पर काम आएगा हम लोग को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं कॉर्ड ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। कॉर्ड ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन पैराबोला। This is an important topic. Generally, this is ignored by many students, but we cannot ignore anything for JEE Advanced as I told you. Suppose I have a parabola here. जो भी प्रॉपर्टी, जो भी फॉर्मूला, जो भी डेरिवेशंस करना होगा हम वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए ही करेंगे, एंड आई विल जनरलाइज इट टू ऑल अदर पैराबोलाज. Suppose this is my parabola y square equal to 4ax. Now the topic says chord joining 2 points. Suppose I have a chord of this parabola like this. Suppose this point is A and suppose this point is B. Suppose parameter of point A is T1, this is called T1 point, and parameter of point B is T2, this is T2 point. Then the point A can be written as A T1 square, comma 2A T1. The point B can be written as A T2 square, comma 2A T2. Now I will look for slope of AB. So slope of AB can be written as 2AT1 minus 2AT2 divided by AT1 square minus AT2 square. AT1 square minus AT2 square. On cancelling A and T1 minus T2, we will get the slope as 2 by T1 plus T2. Now this is an important observation. I will not say that slope of chord joining points T1 and T2 will always be T1 plus T2, but in case of parabola opening towards right, which is horizontal, slope of chord joining the points whose parameters are T1 and T2 is always 2 by T1 plus T2, whether the case is with vertex at origin or the case is with vertex shifted to some point h comma k. So similarly, when we will do it for parabola opening leftward, we will get minus 2 by t1 plus t2. You can try it yourself. For upward opening parabola, it will be reciprocal of this, which will be t1 plus t2 by 2. And for downward parabola, it will be negative of reciprocal of this. So overall, I am going to draw a chart. I have parabola here and slope of chord joining t1 and t2 points. Slope of chord joining T1 and T2 points. Now we have 8 parabolas, so I will write one by one. Most basic parabola is y square equal to 4ax, or you can say it y minus k whole square equal to 4a whole into x minus h. इसके लिए स्लोप 2 बाई टी वन प्लस टी टू हो जाएगा अगर आपको ये दो पॉइंट को जोड़ते हैं तो. नेक्स्ट पैराबोला इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay और x माइनस एच होल स्क्वायर इक्वल टू 4a into y minus k. Now this will be reciprocal of above slope, which will be t1 plus t2 whole divided by 2. Another parabola is y square equal to minus 4ax, or you can say y minus k whole square equal to minus 4a into x minus h. This will be negative of the first one, which is minus 2 by t1 plus t2. And the last one is x square equal to minus 4ay और x माइनस एच होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4a होल इंटू वाई माइनस के. यहाँ पर माइनस ऑफ t1 प्लस t2 बाई 2 स्लोप हो जाएगा जब आप दो पॉइंट को जोड़ेंगे जिनके पैरामीटर्स t1 और t2 है. So the same holds for any kind of parabola. Suppose I have a parabola here whose vertex is at say some point in fourth quadrant, say the point is 2 comma minus 1, and parabola opens towards up, and the parabola also passes through origin.
then we can get the equation of parabola. The parabola opens towards up. Since the parabola opens towards up and has vertex at 2 comma minus 1, the parabola must have equation x minus 2 whole square equal to 4a times y minus minus 1, which is y plus 1. Now a will take some suitable values. Accordingly, the curve passes through origin. When we put 0 0 in the equation of the curve, I am going to get it as left hand side I will have 4, so 4 and 4 will get cancelled out. Right hand side we will have just 1, so a will be equal to 1 only, I think. So this parabola is x minus 2 whole square equal to 4 times y plus 1. So you can see that 0 0 is satisfying this. It's a upward opening parabola and has vertex at 2 comma minus 1. So this is the axis of the parabola and this is the tangent at vertex of the parabola. Now suppose we have a point here, say this point is P, and through this point we are drawing a chord and this intersects the parabola again at Q. If this point Q has parameter T2, और पैरामीटर निकालना हम लोग पिछले क्लास में ही सीखे थे जिसमें पल्लवी और ओम का सबसे पहले आंसर आया था -5/2. Parameter can be found for any type of parabola and say this is T1, then for this figure you can directly write slope of chord PQ will be equal to, now since it's opening upward तो ये 2/T1 plus T2 नहीं होगा, ये T1 plus T2 by 2 होगा, और अगर यही डाउन ओपन हो रहा होता तो T1 plus T2 by 2 का निगेटिव हो जाता, तब स्लोप होता माइनस ऑफ T1 plus T2 by 2. सो वी विल मूव फर्दर. जब हम लोग और आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं तो अभी जो इक्वेशन निकाल के हम लोग लाने वाले हैं दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला ओनली, but the result which I will derive from it, that will be important for all kinds of parabola. Suppose I have a chord like this, say this is point T1 and say this is point T2. So the points are very clear, 81 square comma 281, 82 square comma 282. Now I want to write the equation of chord PQ. So if I want to write equation of chord PQ, I can just write y minus 2a T1 equal to slope will be 2 by T1 plus T2 whole into x minus a T1 square. Now let me check, somebody is messaging me. ओके सावी, नो प्रॉब्लम, चलता है. जो भी मिसिंग है वो तुम देख सकती हो. वैसे कुछ ज़्यादा खास मिस नहीं हुआ है, लेकिन देख लेना एक बार वीडियो. इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं, कोई ठिकाना नहीं है तुमको पता होगा या नहीं पता होगा, क्योंकि कोनिक सेक्शंस के बारे में कुछ भी सही नहीं लगता है हमको. Anyways, now on cross multiplication, I will get this as T1 plus T2 whole into y minus 2a T1 whole into T1 plus T2, which is equal to 2x minus 2a T1 square. Now this simplifies to T1 plus T2 whole into y minus 2a T1 square minus 2a T1 T2 equal to 2x minus 2a T1 square. Now we can see that 2a T1 square is getting cancelled out and we are getting the equation as take everything to right hand side. So this is 2x minus T1 plus T2 whole into y plus 2a T1 T2 equal to 0. Now this is a very important equation. This equation should be remembered by you. It is the equation of the chord joining the points whose parameters are T1 and T2. You need not find the points for writing the equation of this chord. But if parabola are other 7 parabolas, then you will have to get such equations by the basic method which I have done just now here. Still I will say, if the parabola is of same orientation, that is horizontal and opening towards right, but the vertex is not at origin, the vertex is at h comma k, then I suggest in place of x you can simply write x minus h, in place of y you can simply write y minus k, because these transformations are coming from shifting of origin concept. सो यहाँ पर भी तुम्हारे पास आ जाएगा इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग पॉइंट्स T1 एंड T2. सिमिलरली यू कैन डू फॉर अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला एंड डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर.
Now, the important points which I am going to discuss right now is that first important note, suppose this chord passes through the point k comma 0 on the axis of the parabola. I am repeating k comma 0 on the axis of the parabola. This is not always k comma 0. मेरा बात समझने का कोशिश करो. This is a point at a distance of k from vertex on the axis of the parabola. This is a point at a distance k from vertex on the axis of the parabola. I will repeat this. So if this chord PQ passes through k comma 0, PQ passes through k comma 0, this implies, अगर ऐसा होता है तो I can just put k comma 0 in this equation, so I will get 2k plus 2a t1 t2 equal to 0. Now 2 and 2 will get cancelled out and I will get t1 t2 equal to minus k by a. So this is an important point. अगर T1 और T2 पॉइंट को जोड़ने वाला कॉर्ड पैराबोला के एक्सिस को k, 0 मत याद करो, वर्टेक्स से k डिस्टेंस की दूरी पर कट करता है, तो T1 और T2 पैरामीटर्स के प्रोडक्ट का वैल्यू फिक्स होगा और वो माइनस k बाई ए होगा. अगर हम इसका कन्वर्स देखें, then that is also very important. If T1 into T2 is coming out to be minus k by a, then chord joining T1 and T2 points, chord joining T1 and T2 points must pass through a fixed point, must pass through a fixed point, must pass through a fixed point k comma 0. Now in this case it is k comma 0, but in all other case I hope you can understand t1 t2 equal to minus k by a अगर आता है, इसका मतलब t1 और t2 को जोड़ने वाला कोई भी कॉर्ड जो है वो पैराबोला के एक्सिस को वर्टेक्स से k डिस्टेंस की दूरी पर काटेगा. वो k अंदर भी हो सकता है, वो k बाहर भी हो सकता है. इट डिपेंड्स कि t1 t2 के प्रोडक्ट का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है. जैसे कि अगर हम अभी एक और फिगर स्केच कर देते हैं, मान लो यहाँ नीचे में, फॉर एग्जांपल आई एम स्केचिंग ए स्मॉल फिगर हेयर ऑल्सो. सपोज माई फिगर इज लाइक दिस, से दिस इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax. देखो तुम्हारे जेई मेंस जेई एडवांस में कोई भी पैराबोला पूछ देगा, लेकिन ज्यादातर केस में देखा गया है कि पैराबोला स्टैंडर्ड ही पूछा है. नाउ सपोज वी हैव अ कॉर्ड लाइक दिस. Say this point is having parameter t1 and say this point is having parameter t2, and we can see in this figure ऐसा कुछ दिया हुआ है कि t1 t2 का जो वैल्यू है वो माइनस k बाई ए आ ही नहीं सकता है. आई टोल्ड यू एक्सिस के ऊपर t1 पॉजिटिव होगा, एक्सिस के ऊपर t2 पॉजिटिव होगा. जब t1 और t2 दोनों पॉजिटिव होगा तो t1 t2 का वैल्यू निगेटिव कैसे आएगा? तो इट विल बी अगेन माइनस के बाई ए. अगर तुम लिखते हो तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू टेक के एज निगेटिव. तो वो पॉइंट के कॉमा 0 ही है, लेकिन इस बार वो वर्टेक्स से फिर से के दूरी पर है. लेकिन द ओनली डिफरेंस इज दैट इस बार ये अंदर नहीं है, इस बार ये बाहर है, तो ये माइनस के कॉमा 0 से पास करेगा. अगर पैराबोला शिफ्टेड होता तो भी ये वर्टेक्स से के डिस्टेंस की दूरी पर एक्सिस को कट करता. वो अंदर है कि बाहर है वो तुमको ये देखना पड़ेगा कि T1 T2 अगर अपोजिट ब्रांचेस ऑफ पैराबोला पे है तो ऑब्वियसली कॉर्ड पैराबोला के अंदर ही काटेगा, और अगर T1 T2 सेम ब्रांच ऑफ पैराबोला पे है तो डेफिनेटली वो पैराबोला के बाहर ही एक्सिस को काटेगा. सो द टू इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आर, अगर कॉर्ड k कॉमा 0 से पास करता है तो T1 T2 माइनस के बाई ए होगा, और दूसरा पॉइंट, अगर T1 T2 माइनस के बाई ए है तो कॉर्ड पक्का k कॉमा 0 से पास करेगा. So these are two important points. The third point which comes to mind from here is that focal chord is also a special case of this case only when k will be equal to a. जब k a हो जाएगा, just see here,
यहाँ पर k जब a हो जाएगा देन दिस पॉइंट विल बिकम a कॉमा 0 विच विल बी फोकस ओनली, और उस केस में जब आप इस रेशियो में k के जगह पे a रखेंगे तो t1 t2 -1 आ जाएगा. So for any focal chord the product of the parameters of the endpoints is always -1. Always remember this. For any focal chord, t1 t2 is always equal to -1. ये चाहे किसी भी ओरिएंटेशन का पैराबोला हो. जनरली क्वेश्चन कभी कभी मेंस लेवल में ऐसा आ जाता है. मेंस, आई एम सेइंग अबाउट मेंस नॉट एडवांस, कि वन एंड ऑफ ए फोकल कॉर्ड या फिर ए फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला इज ड्रॉन थ्रू द पॉइंट इतना, फाइंड द अदर एंड ऑफ द पैराबोला. तो जो एंड दिया हुआ है उसका आपको T1 निकाल लेना है और T2 अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट -1 करके निकल जाएगा, और जैसे ही T2 निकल गया उस पॉइंट का आपको पैरामीटर मिल गया है, आप पैरामेट्रिक फॉर्म में उस पैरामीटर को डाल दो और आपको अदर एंड भी मिल ही जाएगा. इसका कन्वर्स भी ऑब्वियसली सही होगा, जैसे ऊपर का कन्वर्स है इसका भी कन्वर्स है. इफ T1 T2 इक्वल टू -1, अगर T1 T2 का प्रोडक्ट -1 आ गया देन कॉर्ड मस्ट बी ए फोकल कॉर्ड. कॉर्ड इज ए focal chord. Now this is very important part which we are going to discuss right now. Focal chord. फोकल कॉर्ड पे काफी प्रॉपर्टीज बन सकते हैं, तो फोकल कॉर्ड को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग. तो फोकल कॉर्ड के बारे में क्या क्या जाना जा सकता है. सबसे पहला चीज जो जाना जा सकता था वो तो तुम जान लिए. Suppose I have a parabola here y square equal to 4ax, and suppose I have a focal chord like this. So this will pass through the point F, which is a comma 0 for the given parabola. Now this is say T1 point and this is say T2 point. So only thing we have seen till now is that T2 is equal to minus of T1. तो Q का कोऑर्डिनेट आ जाएगा ना भाई हम लोग के पास. Q का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा हम लोग के पास, जैसे ए टी स्क्वायर कॉमा 2at के जगह पर t के जगह -t1 रख दो, तो a बाई t1 स्क्वायर कॉमा -2a/t1. दैट मीन्स अगर हम इसको सीधा t पॉइंट मान लिए होते, मतलब at स्क्वायर कॉमा 2at अगर अज्यूम किए होते, तो दूसरा एंड का कोऑर्डिनेट आएगा हमेशा a/t स्क्वायर कॉमा -2a/t. बट दिस थिंग्स आई एम डूइंग ओनली फॉर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax. ये कोऑर्डिनेट आप किसी भी पैराबोला के लिए मत याद कर लेना. सो सपोज दिस इज माय डायरेक्ट्रिक्स. दिस इज माय डायरेक्ट्रिक्स. आई विल अगेन से डायरेक्ट्रिक्स इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो अभी तक हम इग्नोर कर रहे थे. हमको पी क्यू फोकल कॉर्ड का लेंथ चाहिए. आई वांट द लेंथ पी क्यू. I want the length PQ. So this was my first important point. This was my second important point. हमको PQ का लेंथ चाहिए, तो PQ का लेंथ लिखा जा सकता है PF plus QF. Now I don't prefer using distance formula at all. So PF will be definitely equal to PM as per the definition of the conic sections, and QF will be equal to Qn as per the definition of conic section, and this is especially a parabola whose eccentricity will be 1. So PF can be written as PM and QF can be written as Qn. Now PF can be written as what? This gap is A and this gap is what? This gap is AT square. So this is AT square plus A plus Qn. Now Qn is what? Qn is, this is again gap A plus, what do you think of this gap? This gap is A by T square. So simply take out common A. So PQ you will see as A whole into T plus 1 by T whole square, a fantastic formula. Whenever you have one end of parabola focal chord as T, you need not find the two coordinates, the two ends of the focal chord. You can directly write the length of the focal chord as a whole into t plus 1 by t whole square. अगर तुम q का भी पैरामीटर इसमें पुट कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगा भाई. q का पैरामीटर -1/t है. आप इस t के जगह -1/t रखेंगे तो वो -1/t हो जाएगा. ये -t हो जाएगा, माइनस कॉमन निकाल लोगे, t प्लस 1/t का ही होल स्क्वायर आना है. तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम p के लिए डेराइव किए तो आप p पे लगाओ. फोकल कॉर्ड का कोई भी एक एंड, चाहे वो P हो चाहे वो एंड Q हो, आप उसका पैरामीटर इस फॉर्मूला में रख दो, यू विल गेट द लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड.
नाउ दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल पैराबोला। एप्लीकेबल, सब कुछ एप्लीकेबल टू ऑल पैराबोला है, बस हम निकालेंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए। एप्लीकेबल टू ऑल पैराबोलास कहने का मतलब ये है कि सपोज आपको अगर कभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आया एग्जाम में, सपोज दे गिव यू ए क्वेश्चन लाइक दिस, ए फोकल कॉर्ड, a focal cord is drawn, a focal cord is drawn through the point, a focal cord is drawn through the point। नाउ वन नोट में ये खासियत है, हम लोग किसी भी लेक्चर की चीज में जा सकते हैं। तो ऊपर यहाँ देखो हम लेक्चर 2 के काम पर जा रहे हैं, और लेक्चर 2 में हम लोग लास्ट क्वेश्चन ये किए थे जिसका आंसर -5/2 ओम ओम का पल्लवी लाए थे। तो पॉइंट हम यही यूज कर लेते हैं, -2, 3/2 through the point -2, 3/2। A focal chord is drawn through the point -2, 3/2 to the parabola, to the parabola। Now let us write the equation of the parabola from here only। So equation of parabola was given as 2x square plus 3x minus 2y plus 1 equal to 0। 2x square plus 3x minus 2y plus 1 equal to 0, minus 2y plus 1 equal to 0। A focal chord is drawn through the point this to the parabola this। Find the length of focal chord। Find the length of focal chord। Find the length of focal chord। Now I will start unmuting some of you। Be honest please कि आप लोग इस तरह का क्वेश्चन पहले कैसे सॉल्व करते थे, सो दैट हमको ये पता चले कि तुम्हारा सोचने का तरीका क्या हुआ करता था। तो इस पैराबोला को जब हम लोग अपने कंप्लीटिंग स्क्वायर से स्टैंडर्ड फॉर्म में लाए थे, तो वह स्टैंडर्ड फॉर्म पैराबोला का यहाँ पर ये था जिसमें वर्टेक्स -3/4 और -1/16 था। So I am writing this parabola as x plus 3/4 whole square equal to y plus 1/16। यही पैराबोला आया था, और यहाँ से हम लोग को 4a का वैल्यू 1 मिला था, और a इक्वल टू 1/4 आ गया। और जो पॉइंट दिया हुआ है, सपोज ये डायग्राम किस तरीके का था, इसका डायग्राम हम लोग पिछले क्लास में बनाए थे। यहाँ पर डायग्राम है, वर्टेक्स -3/4 -1/16 पर था। I will locate -3/4 -1/16। The parabola was something like this, और इस पर कोई पॉइंट था -2 -3/2, जो कि इधर आ गया था -2 -3/2। और इसका फोकस भी कहीं था, हमको फोकल कॉर्ड का ही लेंथ निकालना है। तो इस तरह से मान लो कोई फोकल कॉर्ड बनता जो यहाँ पर फोकस से पास कर रहा है, ये क्यू पॉइंट हो गया मेरा। तो हमको पी क्यू का लेंथ अगर निकालना है, तो पी का पैरामीटर हम पिछले क्लास में ही निकाल लिए थे। पैरामीटर मेरा आया था -5/2। पैरामीटर निकालने का बेस्ट तरीका है, आप इस पैराबोला का पैरामेट्रिक फॉर्म लिख लो। ये अपवर्ड वाला है तो 280 80 स्क्वायर है, सो दिस इज -3/4 प्लस 280 विच इज t/2 -1/16 80 square, so t square by 4, and compare with the given point, you will get directly as t equal to -5/2। So length of focal chord PQ can be written as a whole into t plus 1 by t whole square। a का वैल्यू 1/4 था, t का वैल्यू -5/2 है, तो ये -2/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज 1/4 इंटू, माइनस तो हम लोग हटा ही देते हैं, वो प्लस हो जाएगा। तो नीचे में एलसीएम आ जाएगा मेरा 10, और ऊपर में आ जाएगा 25 प्लस 4 29 का होल स्क्वायर। सो 29 का होल स्क्वायर आई एग्जैक्टली डोंट रिमेम्बर क्या होता है, पता नहीं। आई थिंक इट विल बी, कितना है शार्दुल भाई, 29 का स्क्वायर 841। तो 841 डिवाइडेड बाय 100 into 4 400। So this is the length of the focal chord which is drawn through the point -2 -3/2। Now it's a purely JEE mains level kind of question। I am not saying JEE advanced, लेकिन बेसिक्स क्लियर करना है तो पहले JEE मेंस के थ्रू ही गुजरना पड़ेगा ना भाई। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेन पार्ट क्या था यहाँ पर। सबसे पहले हम लोग जो पैराबोला हम लोग को दिया हुआ है, the parabola which we have, this one, this parabola has to be brought to a standard form of parabola। A standard form is this one, ये standard form कहलाता है। यहाँ से हम लोग को a मिल जाता है, जैसे ही हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं a मिल जाता है, और जैसे ही हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं हमको पैरामेट्रिक फॉर्म मिल जाता है, और पॉइंट से कंपेयर करके t मिल जाता है। दैट्स इट, वी जस्ट वांट टू थिंग्स, we want a and we want t।
Just put in the formula which I have provided here. You will directly get the answer. So I will start unmuting you. Please be honest and share with me इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते थे पहले. So I am stopping the recording for here. So ये हमारे क्लास का स्टार्टिंग था. आप याद रखिए इसको. हॉरिजेंटल कोई भी पैराबोला है तो स्लोप 2/t1 + t2 होता है. वर्टिकल ओपनिंग अपवर्ड t1 + t2/2 होता है. ओपनिंग लेफ्ट -2/t1 + t2 होता है. ओपनिंग डाउन t1 + t2/2 का निगेटिव होता है. Now chord joining T1 and T2 point is very important here. All the notes are extremely important notes in this page. Then this is also important note. Length of the focal chord should be remembered by you. एक एंड का पैरामीटर अगर t है तो दूसरा एंड का -t होगा, याद रखना है. और इस तरह के क्वेश्चन को करने में आपको 2 मिनट से ज़्यादा अब नहीं लगना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है. सो वेरी फाइन. लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चन. क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर. तो जो करंट टॉपिक हम लोग पढ़े हैं वहाँ से हम लोग क्वेश्चन शुरू करना स्टार्ट करते हैं. आज के टॉपिक पर ही क्वेश्चन करते हैं तो तुमको ज़्यादा सही रहेगा. सो नाउ हियर वी हैव अ क्वेश्चन. प्लीज आई एम रीडिंग आउट. आप भी मेरे साथ पढ़ो. आई विल गिव यू सम टाइम. प्लीज ट्राई दिस प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम सेज ए क्वाड्रिलैटरल ABCD. A quadrilateral ABCD is inscribed in y square equal to 4ax and three of its sides AB, BC, CD pass through fixed points जिनके coordinates है alpha, 0, beta, 0 and gamma, 0. Then so that the fourth side also passes through a fixed point. Also find this fixed point. That fixed point you will definitely get in terms of alpha, beta and gamma. So please take your 3 to 4 minutes time and tell me how much you are able to solve this one. Okay, this is a very nice kind of question, but the question can only be solved. You have a very bright concept for parabola. Suppose I am drawing a parabola. Parabola y square equal to 4ax दिया हुआ है. तो I have a parabola like this. So this is my parabola y square equal to 4ax. Now a quadrilateral ABCD is inscribed inside this parabola. Suppose I am just randomly drawing some quadrilateral ABCD inside this parabola. Quadrilateral के बारे में कुछ खास तो नहीं बोला गया. तो say this quadrilateral is A, B, C and D. Suppose respective parameters of the points A, B, C and D are, say this is T1 point, say this is T2 point, say this is T3 point, say this is T4 point. Now it is said that AB passes through alpha, 0 भाई. AB जो है वो पास कर रहा है अल्फा, 0 से. तो AB आप देख सकते हो ये हम कॉर्ड बनाए हैं और ये पास तो करेगा ही एक्सिस पर ना कहीं से. ये पॉइंट दिया हुआ है अल्फा, 0. आई एम सॉरी, दिस पॉइंट इज गिवन एज अल्फा, 0. देन देयर इज नो डाउट that I can write T1 T2 T1 T2 is equal to minus k by a. So this is minus alpha by a. So this is my first equation. Similarly, BC passes through say this point beta, 0. तो जब BC chord पास कर रहा है बीटा, 0 से, तो हम लोग लिख सकते हैं T2 इंटू T3 इक्वल टू माइनस बीटा बाई ए. बाप रे, लेके जाओ यहाँ से इसको. सिमिलरली CD भी पास कर रहा है कहीं से, वो है गामा, 0. तो CD को भी जब हम आगे एक्सटेंड कर देंगे, सपोज CD, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, जब हम CD को एक्सटेंड करेंगे तो ये कहीं तो कट करेगा ना भाई, एक्सिस को कहीं तो कट करेगा. से दैट पॉइंट इज गिवन एज गामा, 0. तो CD पास कर रहा है गामा, 0 से. तो फ्रॉम हेयर आई कैन राइट दैट T3 into T4 will be equal to minus of gamma by A. So we have three equations here and it is said
to prove that the fourth side which is DA will always pass through a fixed point. तो वो fixed point देखो यही आने वाला है. Now how I will prove that T1 into T4 का जो प्रोडक्ट है वो एक कांस्टेंट होगा. अगर हम प्रूव कर दिए कि T1 into T4 का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा, that means it will pass through a fixed point. So I can write T1 into T4 equal to T1 into T2 multiplied by T2. Sorry, I am writing T1 into T2. That's a error. I will write here T1 into T4. हमको T1 into T4 लाना है ना, तो हमको T1 into T4 लाना है. देखो इस तीन डेटा से, एक ये है, एक ये है और एक ये है. तो हम T1 into T2 मल्टीप्लाइड बाई T3 into T4 कर लेते हैं, जो कि लास्ट डेटा है, डिवाइडेड बाई T2 into T3 कर लेते हैं. तो ये कितना आ रहा है देखो, T1 into T2 है माइनस अल्फा बाई ए, which is multiplied by minus gamma by a, which is divided by minus beta by a. So overall there will be a minus sign जो नहीं हटेगा. तो a और a will be cancelled out. So I will get this as minus alpha gamma by a times beta. Now suppose this point is some k comma 0 and I told you this k comma 0, तो फिर T1 और T4 का प्रोडक्ट माइनस k बाई ए होना चाहिए. So a and a will get cancelled out, minus will get cancelled out. So I am getting k equal to alpha into gamma by beta. So the fourth side AD will always pass through a fixed point which is alpha into gamma by beta comma 0. So this was a good problem but can be solved only if you know the property this one and this one, then you can easily approach such kind of problems. So let us discuss second problem. The second problem is here. ये भी कुछ अच्छा ही होगा. Let us read it. Through the vertex O of parabola y square equal to 4x, the chords OP and OQ are drawn at right angles to one another, so that for all positions of P, PQ intersects the axis of parabola at a fixed point. Also find the locus of the midpoint of PQ. Please try this for 3 to 4 minutes and send me your answer. Okay guys, so we will discuss this one here. Now हम यहाँ पर छोटा छोटा पॉइंट चेक कर लेंगे यहाँ पर कि तुम लोग क्लास में कितना कैच कर रहे हो. आंसर तो सबका ही सही है, लेकिन क्वेश्चन हम तुमको इजी दिए या हार्ड दिए वो मैटर नहीं करता है. हमको ये चेक करना है ना भाई कि हम जो सिखाए वो तुम सीखे कि नहीं सीखे. दैट थिंग मैटर्स. थ्रू वर्टेक्स ओ टू कॉर्ड्स OP and OQ are drawn at right angles to one another. ओके, एक कॉर्ड ऐसा है मान लो OP और एक इसी के परपेंडिकुलर कॉर्ड है मान लो OQ. सो द कॉर्ड आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर. उसके बाद क्या बोला है, सो दैट फॉर ऑल पोजिशंस ऑफ P, इसका मतलब ये P का चेंजिंग पोजिशन है. PQ intersects axis of parabola at a fixed point. Okay, so P is variable, that's why PQ chord will be variable because both P and Q will be variable. Very fine. So I have PQ chord like this P is main variable. इसके कारण सब कुछ बदल रहा है क्योंकि P बदलेगा तो 90 डिग्री को मेंटेन करने के लिए Q भी बदलेगा. ये एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है at a fixed point, so we have to find this fixed point. Okay, प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम चेक कर देंगे. इसका मतलब है कि P और Q का जो पैरामीटर है उसके प्रोडक्ट कुछ कांस्टेंट आने वाले हैं, तभी हम बोल सकते हैं कि PQ एक्सिस को एक फिक्स्ड पॉइंट पे क्रॉस करेगा. फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ PQ. वेरी गुड. सो OP का स्लोप M1 विल बी सिंपली 2/t. लेकिन बहुत लोग ये लाए हो, हम जानते हैं इसका पैरामीटर T है. अगर इसका पैरामीटर अगर T है और Q का पैरामीटर अगर T2 है सपोज, या T1 पहले का ले सकते थे, इसका T2 अब जो ले लिए सो ले लिए, तो OP का स्लोप जो है वो 2/t आएगा. वो कुछ इस तरीके से कि P का कोऑर्डिनेट है AT स्क्वायर 2AT और ओरिजिन है तुम्हारा वर्टेक्स विच इज 0 0. सो स्लोप विल बी 2AT माइनस 0 बाई AT स्क्वायर माइनस 0. सो A कैंसल, TT कैंसल, सो द स्लोप इज 2/t. ऐसा किए तो जल्दी से हैंड रेस कर देना प्लीज.
शार्दुल हैंड रेस कर दिया, वेरी गुड। बहुत गलत किए तुम, ये वेदांत जाल के प्रेम सब लोग। वाई, वाई, क्यों, क्यों क्यों ऐसा किए? कितना बार बोलेंगे कि वर्टेक्स का पैरामीटर जीरो होता है, वर्टेक्स का पैरामीटर जीरो होता है, और इस पॉइंट का पैरामीटर टी था। हॉरिजेंटल खुलने वाला पैराबोला का, अगर हॉरिजेंटल खुलने वाला पैराबोला का अगर आपको कॉर्ड का स्लोप निकालना है जिसके एंड पॉइंट्स टी वन और टी टू है, तो डायरेक्ट स्लोप होता है टू बाई टी वन प्लस टी टू यार। तो टू बाई टी आ जाता है वहीं से, क्यों समय वेस्ट करते हो? बड़ा समय वेस्ट करने का मन करता है तुम लोग को। यहाँ भी देखो Q का पैरामीटर T2 दिया हुआ है, और वर्टेक्स का पैरामीटर हमेशा जीरो होता है, और हॉरिजेंटल ओपनिंग पैराबोला है यार, तो इसका स्लोप जो M2 है इसमें कोई शक नहीं है कि ये 2 बाई टी टू प्लस जीरो विच इज 2 बाई T2। डायरेक्टली देख के आदमी लिखता है यार। ज्यादा कैलकुलेशन करने का बहुत ज्यादा मन रहता है क्या तुम लोग को? दिस इज नॉट प्रिफरेबल एट ऑल। अच्छा, कोई बात नहीं सर। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी बहन ने हैंड रेस कर दिया, तुम मेरे मेथड से कियो तब सही है, चलता है, इट्स ओके। सो फॉर परपेंडिकुलर वी शुड हैव एम वन इंटू एम टू इक्वल टू माइनस वन होना चाहिए। तो एम वन इंटू एम टू जब माइनस वन करेंगे ना हम लोग, तो हम लोग के पास आएगा फोर बाई टी वन इंटू टी टू इक्वल टू माइनस वन। सो फ्रॉम हेयर आई एम गोइंग टू गेट टी वन टी टू इक्वल टू माइनस फोर। आई टोल्ड यू ना, जब T1 T2 का प्रोडक्ट कांस्टेंट आएगा, the moment you decide that the chord joining T1 and T2 has to pass through a fixed point k comma 0, so the equate this to minus k by a, and a is given as 1 only, so k equal to 4 bhai, k equal to 4, so the fixed point is 4 comma 0। इस 4 comma 0 से chord को हमेशा 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 पास करना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज दैट हमको इस कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। से दिस इज मिड पॉइंट विच इज h comma k। then what are the things which can be written? So first of all I can write what? I can write h equal to the point p is 80 square comma 280, एंड द पॉइंट क्यू टी टू आ गया भाई, टी टू आ गया, माइनस फोर बाई टी आ चुका है ये। टी टू का वैल्यू माइनस फोर बाई टी आ चुका है, तो ये पॉइंट होगा ए टी स्क्वायर। ए तो वन है ना, ए तो वन है, तो ए टी स्क्वायर विल बी 16 बाई टी स्क्वायर कॉमा 280। 280 ए वन है, तो माइनस एट बाई टी, ये आ गया तुम्हारा क्यू, जो कि वेरिएबल है क्योंकि टी वेरिएबल है। एंड दिस पॉइंट इज ए टी स्क्वायर कॉमा 280। so midpoint h can be written as t square plus 16 by t square divided by 2 only, so I am multiplying 2 on left hand side, and 2k can be written as 2t minus 8 by t. Wow, from here we can cancel out 2 also. So k equal to t minus 4 by t. Say this is equation 2. Say this is equation 1. Just a square equation 2. We have to just a square equation 2. So this is k square equal to t square plus 16 by t square minus 8, and t square plus 16 by t square we can write 2h. So the locus will be k square equal to 2h minus 8, or y square equal to 2x minus 8। क्वेश्चन एग्जाम में कुछ ऐसा ही देता है कि लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू इज ए कोनिक विच इंटरसेक्ट्स द लेटस रेक्टम ऑफ द ओरिजिनल पैराबोला एट द पॉइंट्स। तो इस तरह का सवाल आपको करना पड़ेगा भाई। तो पहले आप कोनिक निकाल लिए हैं लोकस, अब ओरिजिनल पैराबोला का लेटस रेक्टम था कितना, x इक्वल टू 1 पर, तो आप जैसे ही x इक्वल टू 1 यहाँ पुट करेंगे ये निगेटिव आएगा। ऑब्वियस सा बात है, इस पैराबोला का वर्टेक्स ही कहाँ पर है, 4,0 पर है। 4,0, वाओ ग्रेट। 4,0 वही पॉइंट था। ये पैराबोला राइट की तरफ खुलेगा, और इसका लेटस रेक्टम भी देखो 2 आएगा। पहले वाले का लेटस रेक्टम 4 था, इसका लेटस रेक्टम 2 आएगा, जो कि पहले वाले का लेटस रेक्टम का आधा है। तो ये पैराबोला जो है ना, ये पैराबोला कुछ ना कुछ तो इस तरह का होगा, इस तरह का पैराबोला होगा, जिसका वर्टेक्स 4,0 पर ही होगा, और लेटस रेक्टम पहले वाले का लेटस रेक्टम का आधा होगा। और देखो ये एम पॉइंट तुम देख रहे हो, एम पॉइंट को हम इस पैराबोला पर लाई करवाए हैं, क्योंकि उस एम का जो लोकस है वो यही पैराबोला है, तो इस पे तो लाई करना ही होगा। सो आई हैव मोर क्वेश्चंस टू डिस्कस, बट नॉट नाउ।
पहले और थोड़ा सा थ्योरी देख लें। सो वी विल कम बैक टू आवर थ्योरी सेशन। देखो वन नोट बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ पे थ्योरी चल रहा है हम लोग का, यहाँ पे क्वेश्चन चल रहा है। तो थ्योरी जो है वहाँ पर थोड़ा सा और कुछ देख लिया जाए। लाइन एंड ए पैराबोला, लाइन एंड ए पैराबोला। नाउ लाइन एंड ए पैराबोला इज एन ऑसम थिंग। इसमें एम स्लोप का लाइन के साथ पैराबोला का इंटरेक्शन आपको क्लियर कर दिया जाता है, और ये टॉपिक आपको बहुत कम आता है। यू ओनली नो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। दैट इज नॉट एट ऑल सफिशियंट टू क्रैक जेई एडवांस क्वेश्चन। आपको आठों पैराबोला को एम स्लोप का टेंजेंट, एम स्लोप का नॉर्मल, टी पॉइंट पे टेंजेंट, टी पॉइंट पे नॉर्मल, एक एक चीज क्लियर रहना चाहिए। However, I am deriving it for y square equal to 4x। अगर एक का भी याद है तो बाकी का लाना हम तुम लोग को सिखा देंगे, लेकिन एक का याद रखना होगा और एक का तुम याद रखते हो ये हमको पता भी है। So, as far as y equal to mx plus c line is concerned, ये या तो पैराबोला के साथ इंटरेक्ट ही नहीं करेगा, या तो पैराबोला को दो पॉइंट पर कट करेगा, या तो पैराबोला को एक पॉइंट पर टच करके निकल जाएगा। तो अगर ये पैराबोला को एक पॉइंट पर टच करके निकलता है, इन दैट केस इट इज कॉल्ड ए टेंजेंट टू द पैराबोला। सपोज यहाँ पर टच करके लिखा, सो दिस इज ए कॉर्ड ऑफ पैराबोला, दिस इज ए tangent of parabola, this is an imaginary chord, or you can say non-intersecting line, this is non-intersecting line, very obvious। तो क्या है कैसे है सब पता चलेगा। वी विल जस्ट सॉल्व y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी विथ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। सो सॉल्विंग y square equal to 4ax with y equal to mx plus c, y equal to mx plus c क्या मिला हमको? हमको मिला mx plus c का होल स्क्वायर equal to 4ax। from here I am getting m square x square minus 4ax plus c square प्लस 2m इंटू सी इंटू एक्स इक्वल टू 0। प्लीज चेक इट वंस, कहीं गलती है तो बताओ यार, हम बहुत गलती करते हैं। एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर 2m इंटू सी इंटू एक्स माइनस 4ax इक्वल टू 0 ओनली, करेक्ट ओनली। सो दिस इज एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc माइनस 4a होल इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। सो दिस विल हैव थ्री कंडीशंस। अगर ये टेंजेंट हो गया तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट जीरो आना चाहिए। अगर ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन हुआ तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखो पैराबोला और लाइन के बीच में कुछ भी कॉमन पॉइंट नहीं है। यहाँ पर पैराबोला और लाइन के बीच में एक कॉमन पॉइंट कभी मत बोलना, दो कॉमन पॉइंट है, एंड बोथ द पॉइंट्स आर रिपीटिंग पॉइंट्स। यहाँ पे कोइंसाइडिंग सॉल्यूशन है। यहाँ पे डेफिनेटली डी ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि हमको दो डिफरेंट और डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। तो यहाँ से हर डिफरेंट केस हम लोग स्टडी कर लेते हैं, अभी के अभी सारा चीज क्लियर हो जाएगा। तो एक केस तो डिस्कस करने का कोई मतलब ही नहीं है, कौन सा केस है वो समझ रहे हो। इसमें कुछ भी डिस्कस करने को नहीं बचा। अगर डी निगेटिव हो गया बात ही खत्म हो गया, लाइन ऑफ पैराबोला में कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर टेंजेंट हुआ तो, और अगर कॉर्ड हुआ तो क्या क्या हो सकता है ये हम लोग देख लेते हैं। अगर टेंजेंट हुआ तो भाई डी जीरो होना पड़ेगा, और अगर डी जीरो होना पड़ेगा तो फिर 2mc माइनस 4a का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स एम स्क्वायर सी स्क्वायर को जीरो होना होगा। फ्रॉम हेयर यू कैन टेक आउट 2 कॉमन, 4 बन के बाहर आएगा, 4 काट दो और स्क्वायरिंग खोल दो। एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4a इंटू एम इंटू सी माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। So you can see that m square c square is getting cancelled out। वन रिक्वेस्ट टू एवरीवन, एक मैसेज में हमको चैट छोड़ो, कोनिक पहले से अच्छा फील कर रहे हो या नहीं, इस तरीके से थ्योरी पहले किए थे या नहीं किए थे, और अगर नहीं किए थे तो अब करके लग रहा है ना कि कोनिक्स अच्छा हो जाएगा, जस्ट सेंड मी ए मैसेज ताकि मुझको पता चले भाई कि तुम्हारा फीडबैक क्या है, सब समझ में आ रहा है कि नहीं। सो दिस इज 4 इंटू ए इंटू एम इंटू सी। ए इज ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू 0, so can be cancelled out। So I am getting a equal to mc। Now y equal to mx plus c will be a tangent to parabola y square equal to 4ax if and only if parabola का a line के m और c के प्रोडक्ट के बराबर हो। So from here c I am getting as a by m
The moment you got C as a by m, you got the tangents equation, which is y equal to mx plus a by m. तो इस पैराबोला को अगर आपको m स्लोप का टेंजेंट लिखना है तो वो y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम ही इक्वेशन होगा, और ये इक्वेशन बहुत अच्छे से याद करके रखते हो तुम लोग। नाउ व्हाट अबाउट कॉर्ड? अगर ये कॉर्ड हुआ तो फिर d ग्रेटर देन जीरो होगा, और उस केस में हमारा पैराबोला और लाइन में दो कॉमन पॉइंट आएगा, x1 कॉमा y1 एंड x2 कॉमा y2। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आके रखा हुआ है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइन और पैराबोला को सॉल्व करने के बाद ही आया है। और अगर ये लाइन पैराबोला को दो अलग पॉइंट पर काट रहा होगा तो इस x के क्वाड्रेटिक से दो x निकल कर आएंगे, x1 और x2 आएगा, अगर कॉर्ड है तो। आई एम रिपीटिंग, अगर कॉर्ड है तो। टेंजेंट है तो कुछ ऐसा नहीं होने वाला है। सो यू कैन गेट x1 प्लस x2 इक्वल टू हाउ मच? दिस विल बी 4a माइनस 2mc बाय m स्क्वायर, and you can get x1 into x2 as what? x1 into x2 what? C square by m square. Now I want the length of this chord, say this is P point and say this is Q point, and I want the length of chord PQ. So what I can write, PQ square equal to x1 minus x2 whole square, which is x1 plus x2 whole square minus 4 times x1 x2 plus y1 minus y2 whole square. Now y1 can be written as what? The line is itself y equal to mx plus c. तो दोनों कॉमन पॉइंट को लाइन को भी सेटिस्फाई करना ही है। तो y1 और x1 इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा और y2 और x2 भी इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो जैसे ही तुम y1 में y2 घटाओगे c कट जाएगा और m इंटू x1 माइनस m इंटू x2 आएगा। तो m कॉमन लेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर आएगा, और फिर से अंदर आएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। पहले भी आया था x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर ही। सो pq स्क्वायर इज अल्टीमेटली व्हाट? दिस इज, I am taking out common x1 minus x2 whole square. Now x1 minus x2 whole square कॉमन लेने का मतलब है कि आप x1 plus x2 whole square minus 4x1 x2 ही कॉमन ले रहे हो, और x1 plus x2 का वैल्यू हम लोग अपने एबव इक्वेशन में निकाल के रखे हुए हैं, विच इज 4a minus 2mc by m square का होल स्क्वायर minus 4 times x1 x2 will be 4 times c square by m square. This whole is taken out common and I am left with 1 plus m square simply. तो क्या आ रहा है भाई पी क्यू स्क्वायर? यहाँ से ये देखना हम लोग का ही ना काम है। व्हाट कैन वी टेकन आउट कॉमन? सबसे पहले तो ऊपर से देखो भाई क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग अगर 2 बाहर निकालते हैं तो वो 4 बन के बाहर निकलेगा, तो 4 बाद में भी है तो 4 तो एक कॉमन ले ही लेंगे। और एम स्क्वायर का पावर स्क्वायर m पावर 4 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक नीचे से m स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं, और एक 1 प्लस एम स्क्वायर तो है ही पहले से। अब देखना है कि ब्रैकेट में क्या बचा। तो 2 तो ऑलरेडी तुम बाहर निकाल दिए, तो 2a का स्क्वायर बच रहा है, तो वो हम लिख देंगे 4a स्क्वायर। और बताओ क्या बच रहा है? 2 निकाल दिए हो तो फिर से बच रहा है m स्क्वायर c स्क्वायर। और बताओ क्या बच रहा है? और यहाँ से बच रहा है तुम्हारा, एक तो 2 निकल गया, माइनस 4amc बचेगा, 4amc बचेगा, और नीचे में क्या था बताओ? m पावर 4 था, m स्क्वायर निकाल दिया तो m स्क्वायर बचा हुआ है, और राइट साइड में तुम 4 भी निकाल दियो और m स्क्वायर भी निकाल दियो, तो m स्क्वायर c स्क्वायर बचा हुआ है, और नीचे में ओवरऑल m स्क्वायर बचा हुआ है। क्या कैंसिल हो गया देखो? m स्क्वायर c स्क्वायर यहाँ पर भी कैंसिल आउट हो गया। द मोमेंट यहाँ पर m स्क्वायर c स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ है, हम लोग पी क्यू स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? सो इम्प्लाइज पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, डोंट वरी प्रीवियस पेज हम लोग का कभी भी आ जाएगा, ये वन नोट है, 4 बाई एम स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, 4 बाई एम स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। यहाँ से क्या आ रहा है देखो, 4a स्क्वायर माइनस 4amc है, तो 4a कॉमन ले लेते हैं और a माइनस एम सी, तो 4a कॉमन ले लेते हैं, a माइनस एम सी, और नीचे में शायद m स्क्वायर आया था। यस, नीचे में m स्क्वायर आया था। नाउ आई वांट पी क्यू, आई डोंट वांट पी क्यू स्क्वायर। सो पी क्यू के लिए हमको रूट लेना पड़ेगा, तो रूट लेने के लिए 4 दो बार है तो वो बाहर आ जाएगा, m स्क्वायर दो बार है वो बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट में बचेगा क्या? एक a बचा,
एक a माइनस एम सी बचा और एक 1 प्लस एम स्क्वायर बचा। तो बहुत लोग ये फॉर्मूला याद करके भी बैठे होंगे, हमको पता है, पर डेरिवेशन कुछ इस तरीके से आता है। टेंजेंट के केस में तुम देख सकते हो a इक्वल टू एम सी आ गया था, तो a इक्वल टू एम सी होगा तो लेंथ ऑफ कॉर्ड जीरो हो ही जाएगा, तो जीरो होना भी चाहिए। तो ये हुआ लेंथ ऑफ कॉर्ड का फॉर्मूला, जो याद रखोगे तो क्या पता कब काम आ जाए। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट टेबल शुड बी ड्रॉन हेयर। पैराबोला टेंजेंट ऑफ एम स्लोप, टेंजेंट ऑफ एम स्लोप, टेंजेंट ऑफ एम स्लोप। तो क्या क्या पैराबोला है होता है हमारे पास? 8 पैराबोला पढ़े हैं हम लोग, ऑल 8 आर इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, एम स्लोप का टेंजेंट y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। Then next is y square equal to minus 4ax. The m slope tangent will be y equal to mx minus a by m. You can get these results directly. How? By using this calculation. जहां तुम d इक्वल टू जीरो कराओगे, बस अंतर ये होगा कि ऊपर में जो पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x में हम एम एक्स प्लस सी पुट किए, तुम वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x में पुट करके, या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay में पुट करके, या एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay में पुट करके, कहीं भी पुट करके ला सकते हो, हम ला के तुमको डायरेक्ट दे रहे हैं। नाउ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay जब पैराबोला होता है, यू नो वन थिंग वेरी क्लियरली दैट y square equal to 4ax and x square equal to 4ay are mirror images of each other about the line y equal to x. Hence the equation should also be mirror images of each other about y equal to x. तो आप जैसे ही mirror image करते हैं y के जगह पर x और x के जगह पर y, तो ये टेंजेंट बन जाता है x इक्वल टू एम वाई प्लस ए बाई एम। वेरी गुड, दिस इज ए करेक्ट टेंजेंट टू द पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। m का वैल्यू आप कुछ भी रख देंगे ना, तो ये लाइन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay को पैराबोला होगा जरूर, बट नॉट ऑफ एम स्लोप। ये एम स्लोप का टेंजेंट तो नहीं दिख रहा हमको। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। प्लीज रेज हैंड, कैन यू रेज हैंड? समझ में आ रहा है? ये एम स्लोप का टेंजेंट तो नहीं है। टेंजेंट है, हम मानते हैं। एम जो भी रखोगे, कुछ भी वैल्यू रखोगे, तो ये लाइन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay को टेंजेंट ही बनेगा, लेकिन इसका स्लोप एम नहीं होगा। इसका स्लोप फिर है क्या, ये देखना पड़ेगा भाई हमको। इसका स्लोप फिर है क्या? क्या है इसका स्लोप? 1/m है इसका स्लोप। 1/m है। जब हम m से डिवाइड करेंगे ना दोनों तरफ, तो देखो इसको ऐसे लिखेंगे ना हम लोग, दिस कैन बी रिटन एज व्हाट? एम वाई इक्वल टू एक्स माइनस ए बाई एम है भाई। तो y इक्वल टू 1/m टाइम्स एक्स माइनस ए बाई एम स्क्वायर है। m स्लोप नहीं हुआ, हमको m स्लोप का चाहिए, तो 1/m को m से रिप्लेस कर दो, तो ये mx बन जाएगा। तो फिर 1/m m से रिप्लेस हो जाएगा और ये आ जाएगा ए एम स्क्वायर। तो इस पैराबोला को m स्लोप का टेंजेंट y इक्वल टू एम एक्स माइनस ए एम स्क्वायर होता है। जो तुम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को इस पैराबोला के इक्वेशन में यहाँ पे पुट करके डिस्क्रिमिनांट को जीरो करा के भी लाओगे, यू आर गोइंग टू गेट c इक्वल टू माइनस ए एम स्क्वायर। यहाँ पर देखो आया हुआ है c इक्वल टू माइनस ए एम स्क्वायर ही आने वाला है तुम्हारे पास। तो एम स्लोप का अगर हमको टेंजेंट लिखना है बाबू, तो यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू एम एक्स माइनस ए एम स्क्वायर। नाउ दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये नॉर्मल्स के केस में काम आने वाला है और बहुत हेल्प करेगा तुमको आगे जाके। इसको याद कर लो तुम, कैसे हम लोग करते हैं। एम स्लोप का लाने का टारगेट रहता है हमेशा, उस टारगेट को पूरा करने के लिए आपको इस लाइन पर पहुंचाना ही पड़ेगा टेंजेंट या फिर नॉर्मल को, ताकि y इक्वल टू एम एक्स का फॉर्म में दिखे। और जो एम है वो एम है, तुम्हारे काम का एम है, देन वेरी गुड, तुम डांस कर सकते हो। लेकिन अगर वो एम नहीं है तो उसको एम बनाओ। जैसे यहाँ 1/m था, हम 1/m को एम मान लिए, तो 1/m स्क्वायर मेरा एम स्क्वायर हो जाएगा, रेसिप्रोकल। सिमिलरली एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay को जब तुम लिखोगे एम स्लोप का टेंजेंट, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए एम स्क्वायर होगा। प्लीज बाय हार्ट दिस फोर, तभी बाकी चार भी तुम याद कर सकोगे। एम एक्स प्लस ए बाई एम तुम याद रखे हुए हो, एम एक्स माइनस ए बाई एम याद करो, एम एक्स माइनस ए एम स्क्वायर ला के दिखा दिए, और एम एक्स प्लस ए एम स्क्वायर भी ला के दिखा दिए। तो अब चारों शिफ्टेड केस बच गया। पैराबोला y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू 4a होल इंटू
x minus h, y minus k whole square equal to minus 4a into x minus h, x minus h whole square equal to 4a into y minus k, and last parabola x minus h whole square equal to minus 4a into y minus k. Just check it out. पहला पैराबोला और फिफ्थ पैराबोला बस शिफ्टेड केसेस, सी दिस टू पैराबोला, ये पैराबोला और ये पैराबोला में सिर्फ एक शिफ्टिंग का डिफरेंस है h के का. सो सेम डिफरेंस अप्लाइज टू द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एज वेल. सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर दिस पैराबोला ऑफ m स्लोप विल बी, इस टेंजेंट को गौर करो और इसको शिफ्टिंग कराओ h के पे. सो दिस इज y माइनस के इक्वल टू m होल इंटू x माइनस एच प्लस a बाई m. Left opening y minus k equal to m whole into x minus h minus a by m. अपवर्ड ओपनिंग क्या करना पड़ेगा, y इक्वल टू एम एक्स माइनस ए एम स्क्वायर ना, तो y माइनस के इक्वल टू एम एक्स, एक्स के जगह x माइनस एच माइनस ए एम स्क्वायर, एंड डाउनवर्ड ओपनिंग तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए एम स्क्वायर होता है ना, तो y माइनस के इक्वल टू m होल इंटू x माइनस h plus am square. So these are 8 parabola and 8 tangent of slope m जो आपको याद रहना चाहिए, मतलब याद रहना चाहिए. So next comes, अगर हम ये देखना चाहते हैं कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन कहाँ पर टच करता है, what is the point of tangency, generally asked this one, very common question. Y square equal to 4ax पैराबोला को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का लाइन कहाँ पर टच करता है. तो यहाँ पर मान लो हम लोग से बोला जाए कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला को, ये जो लाइन है से दिस लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये कौन से पॉइंट पर टच किया है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालने के लिए दे देगा. तो ज्यादा याद करने का जरूरत नहीं है. पहला बात तो ये कि हमको ये जानने को मिला जब हम नांदेड़ में थे, कुछ ब्राइट स्टूडेंट्स लोग हमको ये बताए कि कोई भी लाइन कोई भी कर्व को कहाँ पर टच करता है, वो निकालने के लिए वो लोग लाइन और कर्व को सॉल्व कर देते हैं. गजब का मेथड था लेकिन, और ये एक नहीं, ये 3-4 लोग कंफर्म किए, हाँ सर ऐसे ही करते थे सर. गजब मेथड है, गजब. मतलब एक बार हैंड रेस कर दो तो कौन कौन यही करता था. No, please don't do that. That is not the correct way of doing at all. The best method to find the point of contact is that we can assume the point to be h comma k. Then we can write the equation of tangent using t equal to 0 formula. तो t equal to 0 formula जब हम पैराबोला में लगाएंगे तो t equal to 0 से क्या आ जाएगा हम लोग के पास, देखो y स्क्वायर के जगह पे k y. हालांकि ये मेथड बाकी कर्व में लगाते हैं, पैराबोला में तो इससे भी अच्छा चीज है हम लोग के पास, लेकिन जो हर कर्व में लगाने को मिलेगा वो पहले तुम सीख लो. 4a इंटू एक्स प्लस एच बाई 2, तो ये क्या आ गया, के वाई इक्वल टू 2a होल इंटू एक्स प्लस एच. सो ऑन making a standard form, this is 2ax minus ky plus 2ah इक्वल टू 0. और जो लाइन है एम एक्स प्लस सी का वो भी तुम जान ही रहे हो कौन सा लाइन है. अगर इसको टेंजेंट है तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम है वो. तो इसको भी अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये लिखाने वाला है एम स्क्वायर एक्स माइनस एम वाई plus a equal to 0. Now both the lines are exactly same. So you can just compare the coefficients. So this is 2a by m square equal to minus k by minus m. So minus minus cancel, k by m equal to 2ah by a. So this is 2h itself. So from first and last we are getting h as a by m square, and from first and second we are getting k as 2a by m. So the point of contact is very clear. This point will be a by m square comma 2 by m. आप देख सकते हो ये पैराबोला के पैरामेट्रिक फॉर्म पर भी आ रहा है.
जो 80 स्क्वायर कॉमा 280 होगा, बस टी के जगह पर 1/m रखा गया है, मतलब m के जगह पर 1/t रखा गया है, मतलब इसका स्लोप 1/t आ तो रहा है। तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट टारगेट टी पॉइंट का टेंजेंट है। आई होप दिस मेथड इज क्लियर, प्लीज रेज हैंड। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने का ये मेथड क्लियर है तुम लोग को? कभी भी सॉल्व नहीं करोगे, लेट द पॉइंट बी एच कॉमा के, आप उस पे एच कॉमा के से टेंजेंट का फॉर्मूला लिख लो। आप जब टेंजेंट का फॉर्मूला लिख लोगे, उसको दिए हुए टेंजेंट के साथ कंपेयर कर दो, कोफिशिएंट्स को प्रोपोर्शनल करवा दो, क्योंकि बोथ द लाइंस आर एग्जैक्टली सेम, and just get the values of h and k, you will get the point of contact directly. So tangent at t point भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमको टेंजेंट एट टी पॉइंट पढ़ा के हम आज छोड़ देंगे, डोंट वरी, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे तुम्हारा हम। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में नॉर्मल देखेंगे एम स्लोप का और टी पॉइंट पे, और फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। पैराबोला में जब तक टेंजेंट नॉर्मल नहीं अच्छे से हो जाए, हम लोग क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। So this method is finding point of contact. Please remember this. पॉइंट मान लिया करो यार, टेंजेंट लिख दिया करो और दिए हुए टेंजेंट के साथ कंपेयर कर दिया करो, एच कॉमा के सीधा ही आ जाएगा तुम्हारे पास। ओके, नो प्रॉब्लम, दैट्स नॉट एन इशू। सपोज आई हैव पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, जानते हो हम कुछ भी डेरिवेशन उसी से करते हैं। सो दिस इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax. Now I have to write the equation of tangent at t point. So this t point is 80 square comma 280. तो जब हम इस पॉइंट पर टेंजेंट लिखेंगे तो वो कुछ इस तरह से होगा। एंड जस्ट आई हैव टोल्ड यू टू राइट t इक्वल टू 0, so टेंजेंट आ जाएगा हमारे पास। सो टेंजेंट एक को निकालेंगे बाबू, टेंजेंट टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, अब बाकी सब पे लगा देंगे। एट 80 स्क्वायर कॉमा 280 इज, इस पे एक अच्छा क्वेश्चन भी दिखाएंगे तभी क्लास एंड करेंगे, इसके पहले तो नहीं करेंगे। वाई स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं 280 मल्टीप्लाइड बाई वाई इक्वल टू 4a इंटू एक्स के जगह पर लिख सकते हैं x प्लस 80 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। नाउ 2 से 4a कैंसिल हो जाएगा 2a बार में, एंड 2a गॉट कैंसल्ड आउट। सो दिस इज टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। वंडरफुल फार्मूला, याद रखना है आपको। पैराबोला अगर हॉरिजेंटल है तो इक्वेशन टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर ही होता है। टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर, जहां आप स्लोप किसी भी मोमेंट जान सकते हैं। स्लोप है 1/t टाइम्स एक्स प्लस 80 का लाइन है ये। आई एम सॉरी, यहाँ पर m लिख दिया, यहाँ पर y लिखना था हमको। स्लोप आपको 1/t दिख रहा होगा, y इंटरसेप्ट 80 है, सो दिस पॉइंट इज 0,80 याद रखा जाए, और दिस इज स्लोप याद रखा जाए। तो इस लाइन का स्लोप 1/t है, याद रखा जाए। अगर पैराबोला राइट हैंड साइड ओपन होता है, चाहे वर्टेक्स ओरिजिन पर हो चाहे वर्टेक्स किसी h, k पर हो, टी पॉइंट पर बनाया हुआ टेंजेंट का स्लोप 1/t होगा, दैट्स इट, फुल एंड फाइनल। लेफ्ट साइड खुलेगा तो -t होगा, ऊपर खुलेगा तो टी होगा, और नीचे खुलेगा तो -t होगा। एकदम याद रखना है। और हम यहाँ पे सारा टेबल दे रहे हैं तुमको। पैराबोला टेंजेंट एट टी पॉइंट, टेंजेंट एट टी पॉइंट। अब मत बोलना कि टी पॉइंट क्या होता है सर, टी पॉइंट पैरामेट्रिक पॉइंट है और कौन सी है। और स्लोप फटाफट लिखेंगे हम लोग, एक याद रखना, बस यही रिक्वेस्ट है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax को, टी पॉइंट क्या है आपको पता है, 80 स्क्वायर कॉमा 280 है, और टी पॉइंट पे जब आप टेंजेंट लिखेंगे तो वो टेंजेंट होगा टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 80 का होल स्क्वायर। स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी 1/t। इफ पैराबोला इज वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, t point will be -80 square comma 280. Only difference is that this will become -x plus 80 square. I will repeat, इक्वेशन में जो डिफरेंस तुमको दिखेगा वही डिफरेंस टेंजेंट के इक्वेशन में भी दिखना चाहिए। बस कंपैरिजन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के साथ करते चले जाओ। यहाँ पे स्लोप आएगा -1/t। अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला इज x square equal to 4ay. What is the difference observed? Difference observed is that x and y got interchanged. So just interchange x and y for tangent as well.
So this is tx equal to y plus at square. Very good. Slope of tangent you can see as t. Another parabola is x square equal to minus 4ay. क्या डिफरेंस आना चाहिए? टी एक्स इक्वल टू, देखो इसमें क्या डिफरेंस हुआ है पिछले वाले से। पिछले वाले में y पॉजिटिव था, इसमें y निगेटिव है। डू द सेम थिंग, माइनस वाई प्लस ए टी स्क्वायर। वेरी गुड। स्लोप ऑफ टेंजेंट यू मस्ट बी गेटिंग एज माइनस टी। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, राइट खुलेगा 1/t, लेफ्ट खुलेगा -1/t, ऊपर खुलेगा t, नीचे खुलेगा -t। इक्वेशन टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर याद रखो। बायां खुलेगा तो x के जगह माइनस, ऊपर खुलेगा तो एक्स वाई इंटरचेंज, नीचे खुलेगा तो एक्स वाई इंटरचेंज करके y के जगह पर माइनस। नाउ अगर पैराबोला शिफ्टेड है तो कुछ भी डिफरेंस नहीं करना है हम लोग को। शिफ्टेड है तो पैराबोला क्या बनेगा वो भी लिख देते हैं हम यहाँ पर, और टेंजेंट क्या होगा ये भी लिख देते हैं, और टी पॉइंट क्या होगा ये भी तुमको पता है। सब पता है तुमको अब। इनफैक्ट बहुत सारा चीज पहले से ज्यादा पता है, अब लगाना शुरू करवाएंगे ही। सो अदर पैराबोलास कैन बी व्हाट? अगर राइट खुलने वाला है तो y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच। टी पॉइंट क्या होता है? h प्लस ए टी स्क्वायर कॉमा के प्लस 2a। टेंजेंट क्या लिखा करते थे? टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर लिखते थे। तो t इंटू वाई माइनस के इक्वल टू एक्स के जगह पे एक्स माइनस एच प्लस ए टी स्क्वायर। तुम फिर से देख सकते हो स्लोप 1/t ही आएगा। y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू -4a इंटू एक्स माइनस एच। So this will be ty equal to minus x plus at square. You can see the slope will come out to be -1/t. X minus h whole square equal to 4a into y minus k. So tx equal to y plus at square होता था। तो tx equal to y plus at square. You can see the slope as t, एंड x माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू नीचे खुलने वाला -4a इंटू वाई माइनस के। ये टी एक्स इक्वल टू माइनस वाई प्लस ए टी स्क्वायर होता था। तो t इंटू एक्स इक्वल टू माइनस वाई प्लस ए टी स्क्वायर। नाउ स्लोप विल बी वाट? माइनस टी। सो ऑल द टी पॉइंट्स आर ऑल्सो क्लियर, वेरी क्लियर। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पैराबोला को कोई लाइन कहाँ टच कर रहा है भाई, ये अगर आपको निकालना है तो आपको फाइंडिंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी करने का जरूरत नहीं है। आप बस पैराबोला का स्लोप निकालिए ना भाई, और देखिए कि पैराबोला किधर खुल रहा है। जैसे अभी जो हम केस बनाए हैं यहाँ राइट मोस्ट साइड में, सी दिस केस, जो राइट साइड में मेरा बनाया हुआ केस है, इसमें पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ था वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो ये राइट खुलेगा, बात खत्म। और टेंजेंट दिया था y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। इसका स्लोप क्या है भाई? m है। तो 1/t होता है स्लोप। जब पैराबोला राइट खुलेगा ना तो टी पॉइंट जब लोगे, ये टी पॉइंट लिया हुआ है मेरा, ए टी स्क्वायर कॉमा 280 लिया हुआ है मेरा, तो इसका जो स्लोप आएगा ना वो 1/t आएगा, जो कि m दिया हुआ है। तो यहाँ से t आ रहा है ना भैया 1/m। तो t 1/m आ रहा है तो पैराबोला का पैरामेट्रिक में रखो ना, तो आ जाएगा सीधा a/m² कॉमा 2a/m। अगर तुमको पैराबोला शिफ्टेड दिया है, ऊपर नीचे दायां बायां कहीं खुलने वाला दिया हुआ है, तो तुम क्या करो? तुम बस देखो कि कौन सा केस है, बायां दायां ऊपर नीचे में से कौन सा केस है। जो भी केस हो उस केस का स्लोप देख लो क्या होता है, और जो टेंजेंट दिया है उसका स्लोप देख लो क्या दिया है। जैसे ही तुम टी वाले फॉर्मूला को दिए हुए टेंजेंट के स्लोप से इक्वेट करोगे, यू विल गेट टी। द मोमेंट यू गेट टी, जो पैराबोला है उसका पैरामेट्रिक फॉर्म निकालना सिखा चुके हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म में या टी डालो ना, क्या झंझट कर रहे हो, सीधा सीधी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा। अगर ये मेथड ओके है तो प्लीज हैंड रेस करो या मैसेज करो, कुछ करो ताकि हमको पता चले, या व्हाट्सअप कर दो जूम पर नहीं आ रहा है तो। सो वी कैन जस्ट सी अ प्रॉब्लम, वेरी सिंपल प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या था, एग्जाम्पल एक बार, ये जेई मेंस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, और या फिर ये शायद जेई मेंस 2019 में पूछा गया है कि 18 में पूछा गया है, या शायद 17 में पूछा गया है। आई एम नॉट कंफर्म वेरी मच। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था। जेई मेंस का इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी ध्यान नहीं दोगे। कोई भी चीज को सीखोगे तो पहले बेसिक से ही ना सीखोगे रे भाई।
और जेई मेंस का क्वेश्चन ही ये एडवांस में ही पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत लोग फंस जाता है इसमें। पैराबोला दिया हुआ था वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x। पैराबोला पर दिया था एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट दिया था 16,16 है। बोल रहा है पैराबोला पर एक टेंजेंट बनाया गया था P पॉइंट पे जो एक्सिस को A पर कट किया था, और इस पर नॉर्मल बनाया गया था जो एक्सिस को B पर कट किया था। बोल रहा था कि PAB ट्राइंगल का सरकम सेंटर C है। PAB ट्राइंगल का सरकम सेंटर C है। C इज द C is the circumcenter of triangle PAB. If एंगल दिया हुआ था तुमको बी पी सी इक्वल टू थीटा, देन टेन थीटा इक्वल टू, पूछा था टेन थीटा का वैल्यू, और ऑप्शन दिया हुआ था 2, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ था हाफ, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ था 4, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ था 1/4। प्लीज डू इट हाउ टू डू। Okay, we will discuss this solution. It's a very good property here we have. आप किसी भी पॉइंट पी पर, यार तुम लोग को हम सोचते हैं कि थोड़ा मोड़ा मतलब प्रॉपर्टी कुछ जानते होगे, तुम लोग दिखा देते हो कि वो भी नहीं जानते हो। तब तो हमको ये क्वेश्चन देना चाहिए था सारा पैराबोला का प्रॉपर्टी बताने के बाद। और ये तो मोस्ट बेसिक प्रॉपर्टी है यार, कि किसी भी पॉइंट पी पर तुम टेंजेंट और नॉर्मल बनाओगे, अगर टेंजेंट एक्सिस को ए पर और बी पर काटता है तो ए बी का मिड पॉइंट हमेशा फोकस आएगा, हमेशा। तो जो सी का बात हो रहा है ना कि वो पी ए बी ट्राइंगल का सरकम सेंटर है, तो वो यहाँ पे 90 डिग्री दिख रहा होगा तुमको, तो जो सर्कल बनेगा उसके लिए ए बी डायामीटर होगा, तो ए बी का जो मिड पॉइंट होगा ना भाई, वही तो सरकम सेंटर होगा। तो ये जो एफ है ना, ये एफ ड्रामा है, ये एफ ही सी है। और इतना घटिया मेथड सोच दोगे कि हमको पता ही नहीं था। तो obviously CA, CP, CB will be equal only, and this angle is given as theta. Isosceles के कारण ये एंगल भी थीटा होगा, so this angle will be 90 डिग्री माइनस थीटा। तो टेंजेंट जो बना हुआ है उसका स्लोप कितना होगा बताओ ना जल्दी। टेंजेंट जो दिया है उसका स्लोप कितना होगा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा का मतलब क्या होता है, कॉट थीटा होता है। और दिस शुड बी इक्वल टू 1/t। हम बताएं ना, जब भी पैराबोला दाहिने साइड खुले राइट खुलेगा, आपको टेंजेंट का स्लोप 1/t से मिल जाएगा। और इस पॉइंट का जब आप पैरामीटर निकालोगे ना तो वो 2 आएगा, मत बोलना पैरामीटर निकालना भी भूल गए। पैरामेट्रिक फॉर्म लिख सकते हो, ए इसका 4 है, पैरामेट्रिक फॉर्म होगा AT² 2AT। इसीलिए बोले थे कि बिना पेन लगाए सवाल बनेगा। मन में पैरामेट्रिक फॉर्म आराम से दिखता है कि 8t बराबर 16, तो T2 होगा। और जैसे ही T2 होगा, बस इस स्लोप का वैल्यू हाफ आएगा। तो कॉट थीटा हाफ है, टेन थीटा कितना होगा, टेन थीटा 2 होगा। हद हो गया यार। आई एम एंडिंग द मीटिंग, आई एम डिसअपॉइंटेड। थैंक यू, बाय बाय।